ضابطے کے باوجود, مختلف کورٹ آرڈرس کے باوجود, مختلف ٹائمنگس پہ ان کو کانٹیکٹ کیا گیا, مگر وہ وکالت نامے نہیں دے رہے. سو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ جو اقدام ہے آف ناٹ فرنشنگ اس اینڈ ناٹ پرووائڈنگ اس دی پاور آف اٹارنی فائٹ دا لیگل بیٹل, یہ بہت علامت بات ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف پہلے کافی گلے شکوے آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہیں. عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا ایشو ہے, اس میں پرائمری انہوں نے جو اپنا ملزم ٹھہرایا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے. سو آئی جی پریزن سے میں آئی جی پریزن صاحب سے میں خطاب کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ پٹیالہ جیل میں معاملات کو دیکھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی اتنے ریونجفل یا اتنا نگلیکٹ اور اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کو کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں 3 مہینوں میں وکالت نامے ملا. سو آج وہ آبجیکشنز تو ریموو ہو گئے. عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے اب اس کو ریگولر نمبر لگ جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس پرانا وکالت نامہ تھا. ہم نے پرانے وکالت نامے میں اپیل دائر کی اور ٹائم کے اندر اپیل دائر ہوئی. 9 دن کے اندر اپیل دائر ہو گئی, 30 دن کا ٹائم. جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم ہیئرنگ ہوئی ہے وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہوئی اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا. القادر ٹرسٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 5 مہینے اور 15 دن کے بعد یہ ہیئرنگ فکس ہوئی اور ان 5 مہینے 15 دن میں بے شمار مرتبہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز فرنش کی, بے شمار مرتبہ چیف صاحب سے رابطہ, ان کے عملے سے رابطہ, فکسنگ برانچ سے رابطہ, مگر کبھی بھی ان 5.5 مہینوں میں پٹیشن جو ہے وہ ان کی فکس نہیں ہوئی. آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے. ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی, جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے. نمبر 1 یار کیا کر رہے ہو یار, بیچ میں موبائل نہ لاؤ نا. میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دس سیکنڈ, اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ان کو روز ٹریٹمنٹ کے لیے پٹیالہ سے باہر لے جایا جا رہا ہے. ان کو ضمانت, اگر ضمانت کے حقدار ہیں ان کو ضمانت دیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرائیں. کوئی ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود جو بہتر سمجھتے ہیں. ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے, رہائی ملتی ہے, باہر آتا ہے, اپنی پسند کرتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. دوسری ارجنسی ایک خاتون جو کہ اہلیہ بشرا عمران ہے, 1 سال سے ان کو سزا ہوئی ہے, 7 سال کی سزا ہے. 5 مرتبہ وہ پٹیشن دائر کر چکے ہیں کہ میرا کیس سن لیا جائے. تو فیمیلس کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنرز, ہمیشہ ان کو اسپیشل ممبرز آف سوسائٹی, اولڈ پرسنس, وومن اینڈ چلڈرن, ان کو ولنریبل ممبرز آف سوسائٹی کہا جاتا ہے. ان کے کیسز کو ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈس پہ ان کو پرائرٹی پر سنا جاتا ہے, مگر پرائرٹی تو ہے ہی نہیں ہے. ایک اور ان کو آگے ایک گراؤنڈ رکھی کہ رمضان کے مہینے جو لوگ ضمانت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ عدالتیں کہتی ہیں جائیں, اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنے کے حقدار ہیں تو یہ ہم آپ کو آن پرائرٹی ہم آپ کو بھیجتے ہیں, آپ جا کر عید اپنی فیملیز کے ساتھ کریں. اس کی بات یہ ہے کہ آج تمام گراؤنڈس کو ویلیڈیٹ کرنے کے باوجود اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ آج اگر 5.5 مہینوں کے بعد کیس لگا تو ارلی ہیئرنگ لگی ہو, مین کیس لگا ہی نہیں ہے, ضمانتوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں, تو اب ارلی ہیئرنگ میں آپ ہم اپنے تمام گلے شکوے چھوڑ جاتے ہیں, وڈرا کرتے ہیں, منڈے کے لیے کیس فکس کروا دیں. ہم جو ہمارا حق ہے ہم منڈے کرتے ہیں. تو جس پر انہوں نے منڈے کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین کی, بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین, اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ 11 مارچ کو بڑے فرمری چل رہا ہے. سو ایک کیس چیف صاحب نے سنا, 5 کیس ہمارے کیسز میں 10-10, 15-15 گھنٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو اتنی لمبی ڈیٹ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے, بہت پرٹربنگ ہے, اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لے کر. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا
ग्यारह तारीख की डेट दी है, नहीं कर रहे हैं ताकि यहाँ पे बारी को देख लेते हैं कि हम यहाँ पे हमें मुबारकियाँ दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने इंसान लिया है कि जब इंसाफ आज प्रेस करने गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आगे से कहा क्या कहा ऑर्डर आए कोर्ट के अंदर मीडिया वाले इसको काटते हैं। ये जरा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका रिपोर्ट बन गए प्रेस रूम जो है आप प्रेस का कमरा है। मैंने प्रेस वालों को कहा, मैंने कहा अपने भाई के लिए खड़े, हम हत्या इमरान खान हत्या के लिए भी खड़ा है, इमरान खान आज़ादी सहाफत के लिए भी खड़े, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खड़े। तो हम भी इसी तरह आपके प्रेस रूम में जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस आपकी इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने आपने ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कोई बात कर सकें। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट ने आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया का बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं, उनकी आँख एक खराब है और इसके ऊपर जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गई है उसको छोड़ें। देखो चीफ जस्टिस है, उनको पता है कि उनकी आँख खराब है, ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है और ये भी सुनना क्यों करना है। लेकिन देश से आप अगर दोस्त को रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफ़ा क्या होगा। अगली दफ़ा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट अजान और उम्रे पे पहले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो प्रोसिक्यूशन इत्तेफाक में बैठ जाएगा, ये तो रमज़ान निकाल देंगे इमरान खान के। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें जो बेल लेने लेंगे, सलमान सबके साथ हमें 3 दफ़ा बता दें हर एक वजूहत पहले को बेल दे दीजिए कि बुशरा बीबी और इमरान खान को अगर 13 महीने डिले कर दिया है तो ऐसे कौन सबके साथ सभी क्यों करेंगे इमरान खान को। अब मैं इसी सवाल पूछूँ, लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम कितना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इसलिए उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे, हम कल से अपने साथ यहाँ बैठेंगे, इसके डर में उन्होंने जल्दी से केस करा दिया, 11 डेट दे दिया ताकि 2 हफ्ते वो आराम से गुजर जाए। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है, सुप्रीम कोर्ट। गाड़ी गई है कोर्ट के अंदर, इसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफान के लाइसेंस में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चलाते हैं। और अब हमारा फोकस है, याद रखिए हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें और दूसरा एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को करेंगे। अब ये 2 फोकस हैं। अब इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दें, जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहने का आप बताएं कि हम इमरान खान को कैसे अस्पताल कर देते हैं। ये पाकिस्तानी सारे हमें कह रहे हैं हमसे खड़े हैं,
लेकिन अब लॉयर्स को सारे मेरे ख्याल में मैं अभी किसी से माशाल्लाह लॉयर्स हैं और जो लॉयर्स हैं बेतहाशा है। हम चाहेंगे कि वो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों, सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएँ। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस करवाएँ, आज जज ने 11 तारीख दे दी है, यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो अहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम उनको कहेंगे कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है मोबाइल के पीछे पर हमारी फ्रेंड बाकी सब की वो इंश्योर करें डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते। तो इसलिए ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी मेरी डॉक्टर सुषमा आपको बता देंगे कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट आती गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उस्मा बताएंगे। मैंने पहले भी बताया था जो रिपोर्ट लिखती है जो हमें पब्लिक में मिली है जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता दूँ कि उसका कुछ नहीं, डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है। और ये बात है जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गया वो नज़र। जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इससे कॉन्टैक्ट में थे वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, जिसके बाद फ़ोन उनके बंद आए, वो कहीं गायब हो गए, वो कहीं अब्डक्ट हो गए, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर बहुत कंसर्न हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स से हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए ये और उनको सामने लाया जाए। पब्लिक ने आके हमें फर्स्ट टाइम खुद बताएं कि क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोज क्या किया है। उन्होंने बताया नहीं कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि वो नहीं कह रहे, एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट में बता दिया और दूसरी बात बताया। वो जो आप देखें ना कुछ कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर परेशान हैं और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से मैसेजेस आ रहे हैं और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये भी जानबूझ के ये डॉक्टर्स ने मिसलीड किया। उनके जिसने भी मिसलीड करने को कहा, मैं उन डॉक्टर्स को नहीं जानती थी को मिसलीड किया, जिसकी वजह से उन्होंने हर चीज़ को डिले कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगी और कहती रहूँगी कि इमरान खान ने जो बार बार कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि उनको ये डिले से उनको जानबूझ के ये इनको कत्ल कर देंगे जेल में। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे से पूछ पाया जा रहा है और हमें इस चीज़ की बड़ी परेशानी है। और हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इमीडिएट प्रोसीडिंग्स की जाए, पहले डॉक्टर्स के साथ अरेस्ट की जाए और फिर इनको सामने हमारे लाया जाए कि इन्होंने किया क्या उनके साथ। अच्छा, सलमान सफदर साहब कुछ चीज़ें बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट अभी तो डॉक्टर उतना बता रही थी जो 16 तारीख को